Good morning, everyone. On the behalf of Oscar Public School, I welcome you all students. I'm your social science teacher Namisha. I guess you all are fit and fine at your homes. So, students, in today's class, we are just going to start a new chapter. And what is the name of our chapter? This is the chapter number 3. And what is the name of our chapter? Movement of the earth. Repeat after me. Movements of the earth. So before I am going to start this chapter, I request all the students, please बेटा open your textbook. आप अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे एंड टेक अ पेंसिल विद यू. अपने साथ में पेंसिल भी रखेंगे. Have you got my point? Just because to if you did not understand a particular word और आपको कोई word समझने में दिक्कत हो, you can just underline that word and just check from the dictionary. Okay, and if you don't have dictionary, just go to the Google and write the word, what is the meaning of that word, and just check from there. And again, one more thing, if you did not understand a particular paragraph, so you can ask with me on a query time. Have you got it? So shall we start? So beta, in this chapter, the chapter number 3, movement of the earth. So bacha, in the previous chapter you had just learned about the shape of the earth by the learning about the miniature model. Tell me that what is the miniature model of the earth? That is globe. So you also study about the axis on which it rotate. In this chapter we shall study about the various motions of the earth and their effect. इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? हम इस चैप्टर के अंदर अर्थ के बारे में, एज यू नो दैट आपको पता चल चुका है अर्थ कैसी है, अर्थ की शेप कैसी है. ठीक है, अभी अर्थ क्या है, एक ग्लोब इज़ अ मिनिएचर मॉडल. इट मीन्स इट्स अ स्मॉल मॉडल एंड द 3D मॉडल ऑफ द अर्थ. एंड व्हाट इज़ अबाउट इट्स एक्सिस, रोटेट कैसे करती है अर्थ, एंड हाउ इट टेक्स रोटेट, कितना टाइम लेती है रोटेट होने में, टेक अ रेवोल्यूशन लेने में कितना टाइम लेती है. सो ईच एंड एवरीथिंग इन अ मिनिमम मैनर. हमने छोटी छोटी चीज़ें ये अभी हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ी थी. बट इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट इन द मोशन ऑफ द अर्थ इन अ प्रॉपर डिटेल. Motions of the earth or a movement of the earth, they both are same thing. The motions of the earth and the movement of the earth both are in same thing. So in this chapter we have just learning objects. हमारे learning objects क्या क्या रहेंगे in this chapter? We have to study about the rotation in detail. कि what is about the rotation? Rotations क्या होती हैं? इफ़ेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि इस रोटेशन से अर्थ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, ये सब चीज़ों के बारे हम पढ़ेंगे. रेवोल्यूशन, व्हाट इज़ दैट रेवोल्यूशन, व्हाट इज़ द ऑर्बिट, सीजन्स, हैव यू नो अबाउट द सीजन, सोलेस्टिक, समर एंड विंटर सोलेस्टिक, इक्विनॉक्सेस, स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनॉक्स. सो ये हमने सीजन्स के बारे में पढ़े. एज यू नो दैट देयर इज़ बेसिकली 4 सीजन, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. सो वी आर जस्ट only study in this chapter about in the each and everything in detail. So shall we start? So this is the movement of the earth, how earth be motions and how earth be rotate, कैसे होती है. So before I am going to start, I will give you a bit story. You must have to played with the spinning top. आपने देखा है spinning top? लाइक आप जिसको हिंदी में लट्टू बोलते हैं, सभी बच्चों ने खेला होगा आई गेस, एज यू नो ना. सो दैट इज़ अ स्पिनिंग टॉप. जब वो टॉप स्पिन करता है तो दैट इज़ उसकी जो नेल होती है वो एक जगह रहती है एंड वो टॉप जल्दी स्पिन करता है, घूमता है. इट हैज़ अ पॉइंटेड एंड इट रिमेन्स अ वर्टिकल एज लॉन्ग इट स्पिन. ठीक है, एंड देन व्हेन इट स्टॉप स्पिनिंग इट फॉल्स डाउन. आपने देखा होगा ना, जैसे क्या होता है कि जब वो घूमता है और घूमने के बाद वो
रुक के जैसे ही वो रुकता है वो नीचे गिर जाता है. अच्छा, टेल मी दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव जस्ट सी द टॉप्स. बहुत सारे बॉयज़ तो ऑब्वियसली खेलते हैं टॉप से, गर्ल्स ने भी देखा होगा. So in this the first chapter you have just studied that all the planets rotate on their respective axis, as you know it, and then at a different speeds. Every planets have a different speeds. हर एक planet ऐसा है जो जल्दी फास्ट चल रहा है, एक planet ऐसा है जिसकी जो है स्पीड थोड़ी स्लो है. So every planets, in last chapter we have already discussed about it कि all the planets study about the rotate and their respective axis and the different speed. In the addition, you all revolve around the sun in the different orbit. Let us now learn more about the both these movements के बारे में. So now we have to come to the on book point. इन अ एशियन पीपल, यानी पुराने टाइम पे पीपल वॉज बिलीव दैट, सबको क्या बिलीव होता था कि अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स. हमें ऐसा लगता था कि हम पूरे यूनिवर्स का, यूनिवर्स मीन्स पूरे ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड पर हमारी अर्थ जो है वो सेंटर में है. बिकॉज अभी तक हमने आउट ऑफ द अर्थ जाकर चीज़ें नहीं देखी थी. सो इन दैट पीपल बिलीव दैट, पहले तो पीपल दे बिलीव दैट कि अर्थ इज़ अ फ्लैट. हमने पढ़ा है ना कि पहले लोग क्या सोचते थे कि अर्थ कैसी है, फ्लैट है, अर्थ की शेप कैसी है, फ्लैट है. बट आफ्टर दैट पीपल थिंकिंग दैट कि नाउ अर्थ इज़ इन अ सर्कल शेप, यानी कि अब स्फेरिकल इन शेप है. सो द अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल द हेवनली बॉडीज मूव अराउंड इट. वो क्या कहते हैं कि अर्थ जो है कहीं नहीं जाता, अर्थ इज़ अ स्टेशनरी बॉडी, और अर्थ के आगे पीछे सारे प्लैनेट, सारे सन, मून सब घूमते हैं. बट क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है, या क्या ये एक्चुअल में रियलिटी है? टेल मी. नो, इट वॉज निकोलस कॉपरनिकस, अ पॉलिश एस्ट्रोनॉमर. पॉलिश एस्ट्रोनॉमर का यहाँ पर पॉलिश नहीं है, यहाँ पर पॉलिश इज़ अ नेटिव ऑफ पोलैंड कंट्री. बेटा यूरोप, हैव यू नो अबाउट द कॉन्टिनेंट्स? एशिया, यूरोप एंड अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अफ्रीका, दीज आर द कॉन्टिनेंट्स. हमने 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा है. सो द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ यूरोप. सो बेटा यूरोप में एक कंट्री है पोलैंड, और जो लोग पोलैंड में रहते हैं दे कॉल्ड अ पॉलिश. जैसे वी आर लिविंग इन इंडिया, हम लोग इंडिया नाम की कंट्री में रहते हैं, एंड वी कॉल्ड इट ऑल्सो अ इंडियन, हमें इंडियंस कहते हैं. ऐसे ही द पर्सन हु आर लिविंग इन पोलैंड, द पर्सन हु आर नेटिव ऑफ पोलैंड, दे कॉल्ड अ पॉलिश. और एस्ट्रोनॉमर कौन होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है. एस्ट्रोनॉमर इज़ अ पर्सन, आइदर बी साइंटिस्ट, हु स्टडीज़ द यूनिवर्स बियॉन्ड द अर्थ एटमोसफियर. समझ आया? एस्ट्रोनॉमर कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि तारों की, ब्रह्मांड की, अर्थ के बाहर की दुनिया के बारे में बात करता है. ठीक है, यानी कि वो स्टडी करता है किस चीज़ की, कि अर्थ के बाहर कौन कौन सी चीज़ें हैं. सो वी हैव टू रीड अबाउट दैट कॉपरनिकस, कि कॉपरनिकस इज़ अ पर्सन, ठीक है, जिसको हम कॉपरनिकस बोलते हैं. पोलिश एस्ट्रोनॉमर था, यानी कि ये एक एस्ट्रोनॉमर था. एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं? अ पर्सन हु स्टडीज़ द यूनिवर्स बियॉन्ड द अर्थ एटमोसफियर. ठीक है, यानी कि ये एक वो पर्सन है, जैसे द डॉक्टर जो कि आपकी शरीर के बारे में चीज़ें, आपकी शरीर के रोग हटाए. ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि डेंटिस्ट कौन होता है, जो कि आपके दांतों का इलाज करे. सेम एज दैट, या हिस्टोरिकल्स कौन होते हैं, मतलब एस्ट्रोनॉमर या एस्ट्रोलॉजर कौन होते हैं, जो कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एस्ट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ये भी हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं. ठीक है, सो बेसिकली अपार्ट फ्रॉम दिस, एस्ट्रोनॉमर अ पर्सन हु स्टडीज़ द यूनिवर्स बियॉन्ड द अर्थ एटमोसफियर. सो कॉपरनिकस इज़ अ पॉलिश एस्ट्रोनॉमर हु सेड, उसने क्या कहा था? अर्थ स्पिन
अर्थ स्पिन ऑन द एक्सिस एंड मूव्स अराउंड द सन। यानी कि कॉपरनिकस ने ये बात कही कि अर्थ जो है वो क्या करती है, अपनी एक्सिस पर घूमती है और सन का एक चक्कर लगाती है। येस, इट इज़ टोटली राइट, ये उसने बात बिल्कुल सही कही। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, एंड मूव्स अराउंड द सन। द साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली, ये भी एक साइंटिस्ट थे, गैलीलियो गैलीली। टू का मतलब है कि वो भी ये कहते थे कि कॉपरनिकस बिलीव दैट प्रूव दैट द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। येस, इट इज़ ट्रू। हम लोग जब भी सोलर सिस्टम बनाते हैं हम क्या करते हैं, सन इज़ द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम और सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, सन इज़ अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी मीन्स सन कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलता। all the planets, all the heavenly bodies, they are move around the sun। यानी कि सारे planets सन का रेवोल्यूशन यानी चक्कर काटते हैं, सन किसी का चक्कर नहीं काटता। ठीक है, सो अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ही thus show the अर्थ हैज़ अ 2 टाइप ऑफ मूवमेंट। अर्थ 2 टाइप से मूवमेंट लेता है। The 2 type of movement that are rotation and another was is revolution. Repeat after me. How many types of rotation? How many types of movement of the earth? There are 2 types of the movement of the earth. How many types of the movement of the earth? Yes, 2 types of मोशन या फिर 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ। 1 इज़ रोटेशन, 1 इज़ रेवोल्यूशन। रिपीट आफ्टर मी। 1 इज़ रोटेशन, 1 इज़ रेवोल्यूशन। गॉट इट? सो बेटा, नाउ वी आर जस्ट रीडिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अभी हम रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द रोटेशन? हैव यू नो दिस? हम बोलते हैं कि सन क्या है, सन ऑलवेज बी अपेयर। जैसे इस पॉइंट में आप देखेंगे वी शुड नो पॉइंट में, आई एम जस्ट स्प्रेडिंग दिस। यस, वी शुड नो सन ऑलवेज अपेयर। हम हमेशा कहते हैं कि सन इज़ राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। हम लोग बोलते हैं ना, हमेशा जो सूरज है वो पूरब से निकलता है यानी ईस्ट से निकलता है और इवनिंग में वेस्ट में छुप जाता है। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अभी हमने क्या कहा, सन इज़ अ स्टेशनरी बॉडी। सन कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलता, अर्थ मूवमेंट करती है और अर्थ अपनी रोटेशन लेती है। ठीक है, एंड अर्थ इज़ रोटेशन। अर्थ हमारे अर्थ के घूमने की रोटेशन क्या है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। याद रखना ये, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तभी हमें लगता है कि सन ईस्ट से निकला और वेस्ट में छुप गया। सो द सन ऑलवेज अपेयर टू राइज इन द ईस्ट एंड द सेट इन द वेस्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और यही हमें लगता है कि हमारा सन निकला और छुप गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सन इज़ अ स्टेशनरी बॉडी, जबकि अर्थ टेकिंग अ रोटेशन। अर्थ जो है वो रोटेशन लेती है, अर्थ अपने ही एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो व्हाट इज़ द रोटेशन? रोटेशन क्या है? यहाँ से देखेंगे, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ on its own axis is called rotation. Okay, repeat after me, this is very important. The movement of the earth on its axis is called the rotation. When the earth movement rotate in on axis, यानी कि अर्थ जब अपनी ही जगह पर घूमे, ठीक है, रोटेट करे,
तो दैट इज़ अ रोटेशन। यानी कि अगर हम जैसे हम टॉप कह रहा है, मैंने आपको टॉप कहा है, टॉप कैसे, यानी कि जो आपका लट्टू होता है वो एक ही प्लेस पर घूमता रहता है, सेम एज दैट अर्थ भी अपना ही रोटेशन लेती है अपने ही एक्सिस पे। दिस इज कॉल्ड रोटेशन। द अर्थ रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, येस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। द अर्थ रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इट टेक 24 आवर्स। बेसिकली हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि अर्थ वैसे तो एक्चुअल में हमने उसको डिफाइन किया कि इट टेक्स अप्रॉक्सीमेट 24 आवर्स, बट हाउ मैनी एक्चुअल आवर्स आप सब ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। टेल मी। अर्थ वन कंप्लीट रोटेशन टेक्स, यानी कि अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ rotates on its axis, and one complete rotation takes 23 hours 56 seconds and 23 hours 56 minutes and 4.1 seconds। आई गेस आप सभी को याद आ चुका होगा कि हमने लास्ट चैप्टर में ही ये चीज़ पढ़ी है। एंड आई नो यू ऑल आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। सो बेटा अप्रॉक्सीमेट हम उसे कहते हैं कि उन्होंने 24 आवर्स के अंदर वन रोटेशन को कंप्लीट किया है। रोटेशन कॉज, अब इस रोटेशन से क्या इफ़ेक्ट है हमने पढ़ा था ना कि हम रोटेशंस के इफ़ेक्ट भी पढ़ेंगे। सो इट कॉजेस, उस रोटेशन की वजह से रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेस डे एंड नाइट, और उसी की वजह से डे एंड नाइट बनते हैं। सी दिस इज़ आवर अर्थ। बेटा हैव यू मेक दिस पिक्चर, आपको ये पिक्चर अपनी नोटबुक में बनानी है। ओके, नो बडी विल कट एंड पेस्ट और फोटोस्टेट, यू हैव टू ड्रॉ दिस। इट आर स्ट्रिक्टली, आपने ये कट एंड पेस्ट या फोटोस्टेट नहीं कराने, यू हैव टू ड्रॉ दिस। ओके, सो व्हाट इज़ दैट रोटेशन? अभी क्या है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ध्यान से समझना इसे। अर्थ रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। This is the axis, and upper one is the north pole and downward is the south pole। हमारी अर्थ टिल्टेड है ना, हमने 23.5 डिग्री टिल्टेड मैंने बताया था आपको। तो अपर वन इज़ जहाँ मैं कर्सर घुमा रही हूँ, सी दिस, जो अपर वन कर्सर आपको दिख रहा होगा, दिस वन इज़ द नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज़ द साउथ पोल, एंड दिस इज़ दी अर्थ की यहाँ पर रेडिएशंस आ रही हैं। सो बेटा सी इट वेरी क्लियरली, द अर्थ इज़ इन स्फेरिकल इन शेप। जैसा कि आपको पता ही है, अर्थ इज़ अ स्फेरिकल इन शेप। ओनली 1/2 ऑफ द अर्थ रिसीव सनलाइट। सी इन दिस पिक्चर, ओनली 1/2, यानी कि आगे वाला हाफ आपको दिख रहा होगा। आई एम जस्ट पॉइंटिंग द कर्सर हेयर। सो 1/2 ऑफ द अर्थ रिसीव सनलाइट एट अ टाइम, यानी कि एक ही टाइम पर 1/2 हमें यहाँ पर दिख रहा है। एंड द अदर साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे, यानी कि जहाँ पर सन की रेस पहुँच रही है हाफ पे, देयर इज़ अ डे, यानी कि इस समय पर यहाँ पर दिन हो रहा है। एंड द अदर साइड देयर इज़ अ, एंड द अदर हैंड द अदर हाफ और अ पार्ट फेसिंग अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट, यानी कि विच पार्ट जहाँ पर अर्थ की रेस रेडिएशंस या फिर अर्थ की सारी सनलाइट यहाँ पर आ रही है, दिस इज़ द डे टाइम। एंड अर्थ जब घूम जाएगी तो ये वाला पार्ट आगे आ जाएगा, ये वाला पार्ट पीछे आ जाएगा। अगेन आई एम दोबारा समझा रही हूँ मैं। As you know that earth is spherical in shape and 1/2 of earth receives sunlight at a one time, and the side of the earth facing the sun experience, that is a day. On the other hand, the other half or a part of facing away from the sun experiences night. एज द अर्थ रोटेट, यानी कि अब अगर अर्थ घूमती है तो द लाइटेंड पार्ट, यानी कि जो लाइटेंड पार्ट है ये पीछे आ जाएगा, और जो घूम कर आएगा जो इन अ पोलर रीजन, एंड पीपल एक्सपीरियंस 6 months समर इन द सन अबव द हॉरिजॉन। ये भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, यानी कि जब ये घूमती है तो
अभी हम देख रहे हैं पोलर रीजन पे, दिस इज़ द पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो बेटा इन द पोलर रीजन मीन्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो दीज आर द, सी दिस इज़ द पोलर रीजन्स. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. दिस इज़ द पोलर रीजन. सो इन द पोलर रीजन पीपल एक्सपीरियंस 6 मंथ समर. पोलर रीजन पर 6 मंथ समर होती है इन विच द सन इज़ अबव द हॉरिजॉन, यानी कि जब हॉरिजॉन पर सनलाइट आ रही है. एंड 6 मंथ्स विंटर इन विच द सन इज़ बिलो द हॉरिजॉन. और इस एरिया में 6 मंथ्स तक क्या रहेगी, 6 मंथ्स तक हमारे विंटर्स रहेगी. यहाँ 6 मंथ्स तक अभी हमारी अर्थ जो है वो टिल्टेड हुई हुई है. ठीक है. ऑल द प्लेसेस ऑफ अर्थ हैज़ डे एंड नाइट बट एट डिफरेंट टाइम, यानी कि एक समय पर यहाँ पर कहीं पर डे हो रहा होता है तो कहीं नाइट हो रही होती है. सो ऐसे ही बेटा अगर द कंट्रीज़ हु आर कम अंडर दिस एरिया, यानी कि जो कंट्रीज़ इस वाले पार्ट में होगी वहाँ पर अभी दिन हो रहा होगा, और जब ये अर्थ रोटेट कर जाएगी अपने एक्सिस पे तो जहाँ नाइट हो रही थी वहाँ पर डे हो जाएगा. सो दिस इज़ कॉल्ड अ रोटेशन. बेटा रोटेशन को समझने के लिए हम यहाँ पर भी देखेंगे. एंड दिस मूवमेंट चार्ट यू हैव ऑल्सो ड्रॉ. दिस इज़ योर होमवर्क. दिस पिक्चर you have to draw and this flow chart you have to also draw. In this flow chart you have to understand each and every point very clearly. तो अभी हम रेवोल्यूशन वाला पार्ट नहीं देखेंगे, अभी हम रोटेशन वाला पार्ट देखेंगे. मूवमेंट ऑफ द अर्थ, हाउ मैनी मूवमेंट ऑफ द अर्थ, देयर इज़ अ 2 मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. सो हम पढ़ेंगे ये मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस दैट इज़ रोटेशन. पहले तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी. एंड हाउ मैनी आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन. सो बेसिकली इट टेक्स 24 आवर्स टू टेक 1 रोटेशन. एंड कॉजेज डे एंड नाइट, यानी कि रोटेशन की वजह से क्या बनता है, डे एंड नाइट. ये हमने अभी पढ़ा है. उसके बाद साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग सन हैज़ अ डे. डेफिनेटली ये भी तो पढ़ा है हमने कि जो साइड अर्थ के सन के सामने आता है, जहाँ पर सनलाइट हो रही होती है वहाँ पर डे पड़ रहा होता है. और द साइड अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस दैट इज़ नाइट. और जो साइड पीछे घूम जाती है वो नाइट हो रही होती है. इससे बेटा एक एक्सपीरियंस आप और ले सकते हो. आप एक टॉर्च जलाएंगे, एक बॉल रखेंगे, आप उस बॉल पर एक साइड में डे लिखेंगे एंड दैट उसके ऑपोजिट एंड लिखेंगे यानी नाइट, और टॉर्च जलाएंगे तो आप देखेंगे सिर्फ हाफ बॉल पर ही आपकी सनलाइट पहुंच रही है. ऑन द बैक साइड पर डार्क एरिया है. ठीक है, वहाँ सनलाइट नहीं जाएगी. सेम एज दैट द अर्थ के साथ भी मूवमेंट ऑफ द अर्थ दैट इज़ रोटेशन. सो आई एम जस्ट लीविंग द क्लास हेयर ओनली बच्चे. सो यू हैव टू डू दिस वर्ड जोन. दिस इज़ योर होमवर्क, this is your homework and this is your homework. So you have a 3 homeworks today. You make this rotation chart and you have to flow chart you have to also make, and this word, these 2 words you have to also write in your notebook. Thank you so much students for taking this class. I hope you all are just fit and fine and you have enjoyed this class. Thank you so much students. Bye bye, take care.